एक बार फिर इंग्लिश टुडे में आपका स्वागत है। और आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाता रहा था द अर्थ, उसका समाप्ति है। आज ये एंड कर रहा है और एंड पर मैंने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आप फिर उसको रिपीट करके भी सुने और उसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है? जो लोग नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर करें। यह ध्यान रहे, उससे मुझे अंदाज़ा मिलता है कि वीडियो कैसा बनाना है, आपकी ज़रूरत क्या है। कमेंट में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर या ऑथर ऑफ द स्टोरी द अर्थ? Who is the writer or author of the story The Earth? आंसर इसका आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वाज बेट्स बॉर्न? राइटर के बारे में पूछ रहा है। एच.ई. बेट्स कब और कहाँ जन्म हुए थे? H.E. Bates died on से आप अंदाजा लगाएंगे कि वह तारीख, डेट, दिन पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ बेट्स व्हेन हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड? व्हाट वाज द एज ऑफ H.E. Bates when his first novel was published? What does the story The Earth depicts? पांचवा क्वेश्चन, what does the story The Earth depicts? छठा क्वेश्चन, what was the possession of Mr. Johnson's? What was the possession of Mr. Johnson's? How many acres of land Mr. Johnson's had? सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड मिस्टर जॉनसन्स हैड? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एट्थ क्वेश्चन, हु वाज बेंजी? अब आपका दिमाग घूम रहा होगा विभिन्न प्रकार के आंसर्स पर कि क्या आंसर हो सकता है। तो सोचिएगा, इसमें एक दो लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता है लिखने के लिए। बेंजी कौन था, मतलब उसका छोटा सा परिचय देना है। What kind of man Benji was? Ninth question, what kind of man Benji was? What was Benji's appearance? What was Benji's appearance? What did the doctor advised Benji's parents? What did the doctor advised Benji's parents? At first, how many hands Benji had? 13th question. At first, how many hands Benji had? 14th questions. Question number 14. What was the purpose of keeping hens? What was the purpose of keeping hens? 15. The money from selling eggs was kept in. The money from selling eggs was kept in. 16. Benji had how many breeds of hens? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, how many breeds of hens Benji had? Mr. Johnson put more value on faith than. इसके कई ऑप्शन हो सकते हैं आंसर के। इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकता है? मिस्टर जॉनसन पुट मोर वैल्यू ऑन फेथ दैन के बाद आपको आंसर चूज करना है। व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर जॉनसन वाज? व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर जॉनसन वाज? व्हाट डिड मिस्टर जॉनसन डू? 19th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर जॉनसन डू?
20. What was Benji's age when he was given passbook? What was Benji's age when he was given passbook by his parents? 21. Number question. What was the amount in his account? What was the amount in his account? 22nd. How did Benji use the amount in his passbook? How did Benji use the amount in his passbook? 23. What was the name of the person from whom Benji bought the land? What was the name of the person from whom Benji bought the land? Next question. What was the difference between Benji's hens and his parents' land? What was the difference between Benji's hens and his parents' land? 25. Mr. Johnson rented his 4-acre land on yearly tenancy from a man named. Listen to the question carefully. Mr. Johnson rented his 4-acre land on yearly tenancy from a man named. 26. Who bought the rented land of Mr. Johnson's? Who bought the rented land of Mr. Johnson's? 27. What was the name of one of the employees with whom Benji married? What was the name of one of the employees with whom Benji married? What was the age of Benji when he moved into the house with Florence as his wife? 28 number question है, what was the age of Benji when he moved into the house with Florence as his wife? 29. What was the relation between Benji's mother and his wife? What was the relation between Benji's mother and his wife? What was the apple? Next question, 13. 13 number question. What was the apple of discord? What was the apple of discord between Florence and Benji's mother? What was the apple of discord between Florence and Benji's mother? अब फिर चलिए एक बार, आपने एक बार क्वेश्चन सुना, मैं फिर अब सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी में। आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको ढूंढना है। आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट में डालिएगा, मैं फिर इसका आंसर दे दूंगा। हु इज द राइटर या और ऑथर ऑफ द स्टोरी द अर्थ, यानी कि ये जो चैप्टर है द अर्थ, इसका लेखक राइटर का है या ऑथर का बात की है, कौन है, इसका नाम लिखना है आपको। वेयर, व्हेन एंड वेयर वाज बेट्स बॉर्न, ये जो राइटर है वो कब और कहाँ पैदा हुआ था। एच.ई. बेट्स कब मरा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में, बेट्स किस उम्र में थे, ये राइटर किस उम्र में था जब इसका प्रथम नावल प्रकाशित हुआ था। यह स्टोरी द अर्थ जो है यह हमें क्या बताती है, इससे हमें क्या पता चलता है, आंसर आपको ढूंढना है। व्हाट वाज द पोसेशन ऑफ मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन के अधिकार में क्या क्या था, कौन कौन सा सामान था। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन की जमीन कितनी थी जिस पर वह रहता था। मिस्टर जॉनसन की जो जमीन थी वो कितनी थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हु वाज बेंजी, बेंजी कौन था। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन बेंजी वाज, बेंजी किस तरह का आदमी था। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज बेंजीज अपीयरेंस, बेंजी दिखता कैसा था। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज्ड, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज, यानी कि डॉक्टर ने क्या सलाह दिया बेंजी के माता पिता को। शुरुआत में बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी। 13 नंबर क्वेश्चन था, शुरुआत में बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गियों को रखने या पालने का उद्देश्य क्या था। 14 नंबर क्वेश्चन, मुर्गियों को रखने या पालने का उद्देश्य क्या था। 15 नंबर क्वेश्चन,
अंडों को बेचने से जो पैसा आता था उसको कहाँ रखा जाता था? 16 नंबर क्वेश्चन, बेंजी के पास मुर्गियों की कितनी जातियां थी? यानी कि आपको जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसमें आया था कि मुर्गियों की जातियां होती हैं या हर जीव जंतु की जाति होती है, तो मुर्गियों की कितनी जातियां थी बेंजी के पास? मिस्टर जॉनसन जो थे वह विश्वास को जितना महत्व देते थे उतना महत्व किसी और चीज़ को नहीं देते थे, या यूं कहा जाए कि मिस्टर जॉनसन जो है एक चीज़ का महत्व नहीं देते थे बल्कि विश्वास का महत्व देते थे। तो किस चीज़ का महत्व वो नहीं देते थे, किस चीज़ को महत्वहीन समझते थे? व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर जॉनसन वाज? मिस्टर जॉनसन किस प्रकार का आदमी था, यानी कि उसका स्वभाव बताना है। एक वर्ड में आ रहा है, स्टोरी में आया है किस तरह का वो आदमी था। व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर जॉनसन वाज, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर जॉनसन डू? मिस्टर जॉनसन कौन सा काम करता था? किताब में तो आ रहा है कि वह फार्मर था, किसान था, लेकिन उसके अलावा भी एक काम था उसका। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज बेंजीज एज व्हेन ही वाज गिवन पासबुक? बेंजी की उम्र क्या थी जब उसके माता पिता ने उसको पासबुक दिया जिसमें बेचे गए अंडों से आने वाले पैसों को जमा किया जाता था? और उसके अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि बेंजी के अकाउंट में कितना पैसा था जिस समय पासबुक उसको दिया गया? अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजी ने पासबुक में जमा जो पैसे थे बैंक में, उसके खाते में जो जमा पैसे थे जो पासबुक में बताया जा रहा था, लिखा हुआ था, उस पैसे का क्या उपयोग किया? अगला क्वेश्चन, बेंजी ने जिस आदमी से जमीन खरीदा 4 एकड़ जमीन अपने पिता के जमीन के ठीक बगल में, उस आदमी का नाम क्या था? 24 नंबर क्वेश्चन है, बेंजी की मुर्गियों और उसके पिता के जमीन के बीच में क्या अंतर था? 25 नंबर क्वेश्चन, बेंजी के माता पिता की जो जमीन थी वह सालाना किराए पर ली गई थी एक आदमी से, उस आदमी का नाम क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर जॉनसन से जमीन किसने खरीदी? 27 नंबर क्वेश्चन, बेंजी के पास जो एम्प्लॉय थे, जो काम करने वाले लोग थे, जिनमें से एक से बेंजी ने शादी किया, उसका नाम क्या था? बेंजी की उम्र क्या थी जब वह शादी करके घर पहुंचा? बेंजी के मां और उसके पत्नी के बीच किस तरह का रिश्ता था? बेंजी की मां और उसके पत्नी के बीच झगड़े की वस्तु क्या थी? कौन सी बात थी जिससे झगड़ा शुरू हुआ था? सारे क्वेश्चन को आपने सुन लिया। सुनने के बाद आंसर ढूंढिए, किताब पढ़िए, स्टोरी सुनिए, जो भी पार्ट्स हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपसे एक छोटा वीडियो बनाकर उसमें आंसर आपको बता सकता हूं और अगला चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। अगले चैप्टर को लाने के समय अभी भी इनडेफिनिट चल रहा है, अनिश्चित समय है, यानी कि लॉकडाउन 1 से लेकर के अब 5वें की बात हो रही है। मतलब ये है कि आपको, जैसा एक बात आप ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने कहा था एक दिन कि आत्मनिर्भर बनिए, हमको आत्मनिर्भर बनना है। ये बात आप लोगों पर ज़्यादा लागू होती है। मतलब सेल्फ स्टडी कीजिए, दूसरा अभी कोई उपाय नहीं है। जब ही फिर उपाय नज़र आएगा, उपाय किया जाएगा, गवर्नमेंट फ्री करेगी, आ गया होगा तो हम लोग फिर अपना क्लासेज वगैरह शुरू करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, और इससे बढ़िया स्टडी कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आप खुद अंतर महसूस करेंगे। लॉकडाउन है, पालन इसका करना है, ज़रूरत बिना ज़रूरत कहीं निकलना नहीं है, उसका उपयोग कीजिए, यूज योर टाइम वेल एंड यू विल सर्टेनली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। चलिए एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सूचना मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।